थॉट्स अल्लाह ताला ने बनाई क्यों, और बनाई तो उसको मैनेज करने की एक रूल बुक क्यों नहीं दे दी कि साथ इसको इतना मैनेज भी कर लेना है आप। The way you perceive things, the way you make sense of things around you, that is very important. Stress is not something which you need to worry about. What you need to worry about is you. अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं, बहुत यंग एज में आपको कार्डियक अरेस्ट रिपोर्ट हो रहा है, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत पहले वो रेजिलियंस लूज कर रही है. यू नीड प्रोफेशनल सपोर्ट एट दिस टाइम. विल पावर कैन ओनली कम सेल्फ डिसीट से निकलो. मैं गिर रहा हूँ, मैं डैमेज्ड हूँ, मुझे हेल्प चाहिए. हमारी ईगो इतनी ज्यादा हाई है कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट देयर माइट बी अ प्रॉब्लम. You have done something wrong to me. Me having a problem with that behavior is valid, but me cancelling the whole Abbas is wrong. That is ego. Ranting is your emotional addiction to keep talking about that incident regardless of getting something in return. Venting is thought is self-talk. आप जो खुद से बात कर रहे हैं वो thought है. Assertive communication is not just when you're talking to other people. It's equally important when you're talking to yourself. इन सब का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है. See, there are a few things that I would want to highlight, especially deviance, distress, dysfunction and danger. Patients हमारे पास जो डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं, एंजाइटी के साथ आ रहे हैं, I specifically tell them to go for strength training. हमें शादी लगता करनी है चाहिए? बहुत जरूरी है. तो अगर 98% मर्द खुश नहीं है तो फिर यार, जरूरी क्यों? शादी करने के लिए प्रेपरेशन भी तो जरूरी है. Many men and many women do not actually know मुझे चाहिए क्या. आप अनहैप्पी हैं अपनी मैरिज के अंदर, तो कौन से स्टेप्स आप ऐसे उठा सकते हैं जिससे हम अपनी मैरिज को बेहतर कर सकते हैं? लड़कियों में ज्यादा होता है कि उनकी एक दोस्त होती है लाजमी, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करते हैं. ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही होती है वो नेगेटिव ही होती है, गलत ही होती है, तो वो उसको गलत तरीके से परसीव करके आप वो गलत एडवाइस दे देती हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाउसल रिलेशनशिप का. स्पेशली चीज़ वो बन गई है कि औरतें बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता. ऐसा नहीं है. उस मोमेंट पे टेम्परेरी सपोर्ट उसको चाहिए, उसको सुन ले, लेकिन उस टाइम पर इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है. देन योर कम्युनिकेशन, बी वेरी ओपन टू कम्युनिकेशन. बात करना नहीं छोड़नी है. हेलो सुपर ह्यूमंस, आई एम योर होस्ट मोहम्मद अब्बास. आज मेरे साथ एक साइकोथेरेपिस्ट हैं नूर. नूर, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच अब्बास. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से अपने, जो मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन थी कि साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? All right, so before I explain the difference between the professionals, I would first start with why do you need to see these people? That is more important. So whenever you feel something is going wrong, there are essentially two things that are important. What is causing it? वजह क्या है? And then the symptoms. Now symptoms में दो चीज़ें आ जाती हैं. One, that is internal, what you're feeling inside, what is your experience, and another is the somatic symptoms. Physiological symptoms. You are stressed about your work. It is presenting itself in the form of you having multiple conflicts at your workplace. One, that is internal. Okay. You know something is going on wrong inside you. And then there are somatic symptoms, headaches. Your muscles are stretched. You're having pain that you're not able to find a reason for. These are all your somatic symptoms, right? So a psychiatrist essentially works on your symptoms. More importantly, your somatic symptoms. He is responsible, or he works on chemicals or chemical imbalance that are inside your body, because of which the issues that are physiological in nature. But a psychologist, now psychologist is an umbrella term. उसके अंदर आपके पास psychotherapist आता है, counselor आता है, couple therapist, etc. So you go to a psychologist. A psychologist helps you or works on your etiology, the cause, what is causing that stress, and what you can do about it. That is the responsibility of a psychologist. Okay. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा केमिकल इम्बैलेंस इन्वॉल्व हो. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोमैटिक सिम्टम्स इन्वॉल्व हो. लेकिन वहाँ पर उसका बेस्ट डिसीजन लेता है साइकोलॉजिस्ट. अगर सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो फिर आपको रेफ़र करता है साइकियाट्रिस्ट के पास. बट आई वुड, अगर आप एज ए लेमैन मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं पहले किसको विजिट करूँ, आई वुड से अ साइकोलॉजिस्ट. अच्छा, तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स की आप बात कर रही हैं, जब स्ट्रेस परसिस्टेंट होता है बॉडी के अंदर और काफ़ी अरसे तक होता है, उसके बाद जाके अक्सर फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, या स्ट्रेस को, या सैडनेस को, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली विद एज सिम्टम्स आते हैं. अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे फिजिकल सिम्टम्स आ रही है, जिस तरह आपने बात की कि सर में दर्द हो रहा है, मुझे स्पैज़म्स हो रहे हैं, बॉडी में पेन है, एनर्जी लेवल्स मेरे बहुत ज़्यादा कम है, मेरे से किसी से बात नहीं होती, ब्रेन फॉग मुझे हो रहा है.
अगर मेरे इस तरह के सिम्टम्स हैं तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाऊँ? I was talking about this on my stories the other day. This is very important. Till 40, your body has a lot of resilience. 40 के बाद आपकी बॉडी आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकेगी. जितनी बर्दाश्त आप में अभी है ना, हर डेकेड के बाद ना वो रिड्यूस कर रही है. जब तक अंदर से आप अपने आप को hear your thoughts, the way you perceive things, the way you make sense of things around you, that is very important. Stress is not something which you need to worry about. What you need to worry about is you. Stress is a product of you. How you're thinking, how you're perceiving things, आपके relationships, आपकी day to day engagement, आपका lifestyle, ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक रखते हैं तो स्ट्रेस तो मैनेज हो ही जाएगा ना. सो अब होता ये है कि लोग नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते और फिर उनकी सोशल सपोर्ट यानी कि उनके रिलेशनशिप्स में भी उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता. जब तक तो उनकी बॉडी उनका साथ दे रही होती है, चीज़ें ठीक जा रही होती हैं. वो दवाइयाँ भी ले लेते हैं, सिम्टम्स को भी ऑन एंड ऑफ ले ली, पैनाडोल खा ली, बहुत हुआ, वॉक कर ली, कुछ कर लिया. आफ्टर 40 फिर एक डिक्लाइन आना शुरू होता है. इन वुमेन it manifests itself in the form of autoimmune diseases, cardiac issues, reproductive issues, etc. etc. फिर देखिए मेनोपॉज के बाद वैसे ही बहुत सारा एक केमिकल इम्बैलेंस और एक बहुत सारी केमिकल स्ट्रगल हमारी बॉडी में आ जाती है एज अ वुमेन. मैं अगर मर्दों की बात करूँ, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज. अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं, बहुत यंग एज में आपको कार्डियक अरेस्ट रिपोर्ट हो रहा है. वाई? बिकॉज आपकी बॉडी बहुत पहले वो रेजिलियंस लूज कर रही है. यू नीड प्रोफेशनल सपोर्ट एट दिस टाइम. You need to go to a psychologist. Meanwhile, for your somatic symptoms, sometimes psychologist के बताए हुए डे टू डे environmental changes से ही आप अपने somatic symptoms को डील कर लेते हो. But if something has gone beyond your control, now one thing is very important, और इस चीज़ पे आप भी मेरे साथ agree करेंगे. हम लोग इस बात को realize नहीं करते that our body is एक टाइम पर आकर ना हमारी बॉडी इंडिपेंडेंट हो जाती है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपनी बात को. पहली दफ़ा आप कुछ इनहेल कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, दैट इज़ योर चॉइस. दूसरी दफ़ा भी आपकी चॉइस है. तीसरी दफ़ा के बाद हो सकता है वो आपकी चॉइस ना रहे. योर ब्रेन इज़ गोइंग टू क्रेव फॉर मोर. Of course. I'm talking about any sort of addiction, whatever that is. और addiction by the way सिर्फ substances की नहीं होती है, emotions की भी होती है, behaviors की भी होती है. Absolutely. हम उस चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं करते कि एक टाइम के बाद मेरी बॉडी पे मेरा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं चाहूँगी भी छोड़ना तो मैं नहीं छोड़ पाऊँगी. Habitual हो जाता है. Habitual हो जाता है. अब उस हैबिट में दवाई आपके विड्रॉल को कम कर देगी, बट वो बिल कहाँ से लाएंगे आप दवाई से? जो यहाँ पर सी nobody goes into addiction without pain. तो ये जो SSRIs दे देते हैं साइकेट्रिस्ट्स, तो इसके बारे में कहा जाता है कि लॉन्ग रन में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं. तो आप सेरोटोनिन को इनहिबिट कर रहे हैं टेम्पररी तौर पे थ्रू मेडिकेशन. डोंट यू थिंक लॉन्ग रन में जाके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, जो आपने खास तौर पे खुद से बात की ना कि वो विल पावर कहाँ से आएगी. तो शुडंट professionals like you and psychiatrists should first be training that individual to somehow build that neuroplasticity and willpower to be able to handle life better. Now, willpower can only come when you... Now, कार्ल रॉजर्स ने ये बात की थी. इसको हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में पढ़ते हैं कि आप सबसे पहले एक्सेप्ट करो, सेल्फ डिसीट से निकलो कि मैं गिर रहा हूँ, मैं डैमेज्ड हूँ, मुझे हेल्प चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप. मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है ना, मैं उसको पहली बात यही कहती हूँ, जंग आपने खुद लड़नी है, मैंने आपको सपोर्ट करना है. अगर आप खुद अपनी वेलनेस में इन्वेस्टेड नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे उठा के किसी और साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादातर लोग नहीं है. और फिर ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो कि ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे में कोई मसला है या हमें किसी चीज़ के ऊपर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है. क्योंकि हम इतने डिफेंसिव हो गए, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा हाई है कि we cannot accept that there might be a problem, and problem does not mean कि you are damaged or you're not a good human being or you're not worth loving. You know, problem का मतलब ये है कि there is space for you to become a better human being. तो ये क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में कैसे डालें? अब्बास, अगैन हर किसी की ज़िंदगी में एक पॉइंट आता है जिसको हम कोकून स्टेज कहते हैं, जहाँ पे you either have to take responsibility for yourself और यू कीप ब्लेमिंग. उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते. तो हम तो ब्लेम ही करते रह जाते हैं ना. हाँ, या तो मैं विक्टिम बन जाते हैं. ब्लेम या तो मैं जिम्मेदारी ले लूँ कि या तो मैंने यहाँ से इस टर्निंग पॉइंट लेना है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है. हर किसी को ज़िंदगी मौका ज़रूर देती है. अब इस चीज़ को मैं रिसर्च से प्रूव नहीं कर सकती, पर ये हम दोनों इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं. कोई एक टर्निंग पॉइंट हम दोनों की ज़िंदगी में आया होगा, वो आता है. उसके बाद आपने चूज़ करना होता है व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट. आपने ईगो की बहुत इंपॉर्टेंट बात की.
this is something that I make sure that one way or the other people realize it. See, you have done something wrong to me. Me having a problem with that behavior is valid. But me cancelling the whole Abbas is wrong. That is ego. हम अपने साथ भी ये कर रहे होते हैं. इसको रिपीट करें थोड़ा सा. मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ. कि हम जो कह देते हैं कि मैं आपको जिंदगी से निकाल दूंगा, खत्म हो जाओ, साइड पे हो जाओ, क्योंकि तुमने एक चीज गलत की है तो मैं उस बंदे को एलिमिनेट कर दूं अपनी जिंदगी में से. मेरी एक आदत गलत है ना, मैंने उस आदत पे काम करना है. वो आदत मेरी पूरे वजूद को डिफाइन नहीं कर रही है, मेरी पूरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर रही है. मैं इंसान हूँ ना, मैं कॉम्प्लेक्स बीइंग हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम अपने आप को भी जज करते रहते हैं. और वो जो अंदर एक शेम आ जाता है ना, गिल्ट आ जाता है, वो इतना तकलीफदेह होता है. खुद से एक्सेप्ट करना, मेरी थेरेपिस्ट ने मुझसे कहा था, नूर स्टार्ट एक्सेप्टिंग and start working on your dirty laundry. Take it out of the cupboard now. That was that one sentence was like a hit. कि okay, I really need to put my dirty laundry out. अब मैं उसको बहुत ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकती. I need to put it on the table. I am struggling with so and so because I lack so and so skill in myself. अच्छा, एक और चीज़ बहुत important है. Well, we're talking about this, Abbas. We think that if I have delivered a message to you, if I've given you an advice, the story doesn't end there. That's actually beginning of the story. If I tell you, for example, Abbas, you have to sleep at 8 p.m. every night. You need to practice that. 2 दिन आप 8 बजे सो जाएंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन back to zero, 5वें दिन फिर, 6ठे दिन दोबारा शायद आप 8 बजे सो जाएं. Everything that a psychologist tells you you need to turn that into a skill. That needs practice and a lot of patience. कि मेरा थेरेपिस्ट जो मुझसे बात कर रहा है वो एक दिन में नहीं आ जाएगा. That needs time and very non-judgmental approach towards yourself and other people as well. When we stop judging others, now we stop judging ourselves as well. Whatever you're doing around you begins with you. आपसे शुरू हो रही है. आप अपने आप को जैसे देख रहे हो, आप वैसे ही अपने अराउंड चीज़ों को नेविगेट करते हो, और वहाँ से फिर सिकनेस स्टार्ट होती है. इट टर्न्स इनटू केमिकल इम्बैलेंस, इट टर्न्स इनटू सोमैटिक सिम्टम्स. सोमैटिक सिम्टम्स का मतलब है कि अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी. यू सी, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. दैट इज़, आज के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत आपको तब नहीं है जब सोमैटिक सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होते हैं. वी ऑल नीड टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, अ प्रोफेशनल. बहुत सारी चीज़ें इनकॉन्शियस में चल रही होती हैं जिनको हम उस तरह से देख ही नहीं रहे होते हैं. अभी आपने ये वाला बात की कि हम सबको चाहिए कि हम थेरेपिस्ट के पास जाएं. बिल्कुल. अब वो हमारा कॉन्वर्सेशन जहाँ से शुरू होनी थी वहाँ पे हम आ जाते हैं, उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि मेरा थेरेपिस्ट ठीक है. मैं चूज़ किस तरीके से करूँ राइट थेरेपिस्ट. मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताया गलत हो गए, कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं हूँ, अगला बंदा जो मुझे एडवाइस दे रहा है वो ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा. सो हाउ डू आई चूज़ द राइट थेरेपिस्ट? राइट. सो कुछ तो बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया. आपने उससे पूछ लिया, उसने BS किया हुआ है, MS किया हुआ है, उसने PhD की हुई है. दीज आर बेसिक्स, एवरीबडी नोज अबाउट दैम. बट हर दफ़ा जब कोई मुझसे या मेरी असिस्टेंट से ये बात करता है ना कि हाउ डू आई नो दैट शी इज़ गोइंग टू बी द राइट therapist for me, the answer is you can never know before having your first session with them, the introductory session. Okay. इस बात से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि क्या आपके साइकोलॉजिस्ट की अपनी पर्सनैलिटी, उसकी अप्रोच, और क्या आपकी रैपो डेवलप हो पा रही है उसके साथ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हों, मैंने बहुत सारी सेल्फ असेसमेंट की हुई हो, मैंने बहुत सारा अरसा थेरेपी में गुजारा हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई भी हों, मैं बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आपकी रैपो नहीं बिल्ट हो पा रही है मेरे साथ. और इस चीज़ का कोई लेकिन एक बंदा जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है थेरेपी होती क्या है, वो बंदा तो यू नो उसको तो पता ही नहीं है मैं किस व्हाट एम आई जंपिंग इनटू. या तो उसके पास कंपैरिजन हो ना कि यार मैं इसको पिछले थेरेपिस्ट के साथ, मैं आई कैन कंपेयर थेरेपिस्ट, आई नो बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस. पर फॉर समवन हु इज न्यू एट दिस, वो तो जाएगा, वो तो जो बोलेगा थेरेपिस्ट मैं मान लूंगा बात, वो गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, मुझे किस तरह पता चलेगा? Abbas, the person who is sitting in front of me na could be naive, but he's not dumb. नाइव जरूर है, वो डम नहीं. इंसान जब परेशानी में होता है ना, तब वो नाइव भी हो जाता है और डम भी हो जाता है. उसकी जजमेंट इतनी क्लाउडेड हो जाती है. I'll tell you that you're right. But see, आपको कैसे पता नाउ? जब आप गए थे अपने फर्स्ट 2-3 experiences में, you were also not using your rational mind a lot, na? But now you can navigate it. See, the thing that you have to go through,
experience and get through experience, you need experience. ये आपने for करना that. पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा। थोड़ा आपको ट्रायल एंड बहुत एरर सारी करना चीज़ें- पड़ेगा। बहुत जिसने आप अपने लिए सारी- डॉक्टर चूज करते हैं, Choose ट्रेनर करते हैं, चूज करते yeah. हैं, You have to do- दोस्त see- चूज करते हैं। See, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक दो एक्सपीरियंसेस आपके गलत हो, योर जर्नी इट इज Doesn't नॉट end there. इम्पॉर्टेंट, योर जर्नी शुडंट एंड. You should be so invested and interested in your well-being ना. एक दूसरा तीसरा, I have to do it till I find the right person where I can have the right set of support and I feel, see, your intuition is very important. Never ignore that. It tells you a lot about anything in general and your therapist as well. आपको समझ आ जाती है कि he's only talking, blabbering, or he's making sense. There's some sense out of what he's delivering. दूसरा एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ज़्यादातर थेरेपिस्ट आप बैठे हुए हैं, आप वेंट कर रहे हैं, Yeah. आप बोल रहे हैं मेरे साथ इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया। ज़्यादातर थेरेपिस्ट उस बात को वैलिडेट करते रहते हैं कि आपका पार्टनर जो था अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। चलें आई बस- कम्प्लीटली एग्री कि उसने जो किया आपके साथ गलत किया। अच्छा, ये बात मैंने आपको वैलिडेट कर दी, आपके इमोशन को, आपकी फीलिंग को। फिर आपने दूसरी बात बोली, उसको भी मैंने वैलिडेट कर दिया। ठीक है। ज़्यादातर थेरेपिस्ट ये बताते भी नहीं हैं कि देयर इज वर्क दैट यू नीड टू डू एज वेल, और वो बस आपकी बात सुनते हैं और आपको लगता है कि देयर इज नो वन हु लिसन्स टू यू एंड ऑल यू वांट टू डू इज वेंट। यू एंड अप वेंटिंग टू द थेरेपिस्ट, यू एंड अप फीलिंग बेटर बिकॉज यू हैव वेंटेड। और थेरेपिस्ट ने भी आपको नहीं बताया कि किस तरीके से यू माइट बी एबल टू इम्प्रूव एज अ ह्यूमन बीइंग सो दैट योर रिलेशनशिप्स गेट बेटर। Yeah. What do you Acha, have to say about that? Abbas, before I answer your question, I have a question for you. What is the difference between venting and ranting? And ranting? Yeah, what is the difference? आई गेस वेंटिंग अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो आपने सप्रेस किए हुए हैं काफ़ी अरसे से, उनको किसी के सामने आप रख रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कुछ ऐसे इंसान के साथ जो कि आपको लगता है वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। रैंटिंग इलॉजिकल इरैशनल बातें जो आप फील करते हैं वो आप किसी के सामने रख रहे हैं और वो बार बार रख रहे हैं और वो रिपेरेटिव हैं। अच्छा, catharsis क्या है फिर? ये आप बताएंगी। All right. Now, see, I'm glad you asked this question. This is very important. Psychodynamics, Sigmund Freud ने दी थी. This may get very boring because I need to deliver these academic points. These are important. Sigmund Freud ने हमें psychodynamic दी थी. उसके अंदर दो चीज़ें हैं essentially. मैं venting ranting पे आऊँगी, लेकिन पहले मुझे आपको थोड़ा सा academic framework देना है, right? ठीक है। उन्होंने बात की थी फ्री एसोसिएशन की, मैं बताऊंगी ये क्या है, और फ्री एसोसिएशन के साथ उन्होंने दूसरी बात की थी कैथारसिस की। फ्री एसोसिएशन इज यू लेट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू टेक इट ऑल आउट। फ्री एसोसिएशन, Yeah, that is me letting you, giving you that space, Abbas, non-judgmental space, whatever is coming to your बोलते brain, जाओ। you throw it down in front of me. This is my job to work through it and see where I need to take a point out of it. कहाँ पटक रहे हैं? Resistance कहते हैं इसको. So, Sigmund Freud was a psychoanalyst. उन्होंने हमें free association का concept दिया, which is me giving you a space without any interruption. You put all out, whatever is going on in your mind, right? And then that leads to the next step, which is psychoanalysis, where I analyze whatever content you have provided me in that process of free association. Okay. Right? I got that. Now, what is catharsis? Again, this concept was given by Sigmund Freud, where you basically relive all those painful experiences and I help you through that. आप हर चीज़ महसूस कर रहे होते हो. Catharsis is essentially not in third person. It's like you're reliving it in the moment and your psychologist is helping you navigate it with you in a different manner, in a healthy manner. So you see where you went wrong in that situation while you were having that. हमें लगता है हम सारी चीज़ों को ना एक ही समझ लेते हैं, वेंटिंग, रैंटिंग, कैथारसिस शायद एक ही चीज़ है। नहीं, कैथारसिस हर इंसान के साथ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीलिविंग एनी पेनफुल एक्सपीरियंस एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू गेट्स पैनिक, आपको तो उनकी पड़ जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु यू आर शेयरिंग your content with, your information with is very important. Right? Now we come to your points, ranting and venting. Ranting is your emotional addiction to keep talking about that incident regardless of getting something in return. आपसे बात की, थोड़ी देर बाद मैंने जाके आते शाम के पास वही बात रिपीट की, जबकि आपने मुझे दे दिया कुछ कि नूर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये बेहतर हो जाएगा।
लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज मुझे मजा आ रहा है उस चीज के बारे में बात कोई करके। सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन ही चाहिए, मुझे सिंपैथी मिल रही है, ये आपने डिसाइड करना है बस। फिर एहतशाम के पास गई, उनसे बातें शातें की, फिर जदून के पास गई, उनको सेम चीज़ बताई, उन्होंने भी कहा है। फिर मैं अपने घर गई, 4 सहेलियों को बताया। दिस साइकिल नेवर स्टॉप्स अनलेस द पर्सन रियलाइजेज इट कि मैं सिर्फ सिंपैथीज और उन चीज़ एक एडिक्शन हो जाती है कि इमोशन के साथ यू लाइक बीइंग वैलिडेटेड, गेटिंग दैट वेंटिंग इज I come to you and I tell you, see, this has happened. Now, here one thing is very important. You need to see if the person in front of you is ready to hear the truth or not. or not. आप इस टाइम पे बहुत ओवरवेलम हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं. I should not be giving you a very realistic and rational feedback right now. कुछ टाइम बाद when you will be in that frame of mind where you'll be like, okay, now bring it on the table. ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला आपके फीडबैक के लिए रेडी है कि नहीं, राइट? सो अ थेरेपिस्ट, सी, हम इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं देख सकते, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है. थेरेपिस्ट को ये समझ आ जाती है कि मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कम्प्लीटली. देयर आर मेनी थेरेपिस्ट जो सिर्फ आपको वैलिडेट करके फील गुड करवा के भेज देते हैं. मेरे थेरेपिस्ट पेशेंट्स, क्लाइंट्स, एट टाइम्स दे ऑल्सो कम टू मी एंड टेल मी, सी, वी फेल्ट अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट आफ्टर द फर्स्ट सेशन. That is very natural because I, reopen all those hurting areas and wounds. But I also leave you with tactics, skills कि आपने उनका करना क्या है. आप उनके एक immediate अपने आप को हेल्प आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो till the time we have our next session. But you need to see कि सामने वाला, see, this is why content तो बहुत सारा है. सेल्फ हेल्प बुक्स हम सब पढ़ते हैं. थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेरी इडियोग्राफिक्स हम इसको कहते हैं ना, मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं उनको उनके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे एक प्रोफेशनल चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ हेल्प बुक में जो कुछ लिखा हुआ है या यूट्यूब की एक वीडियो मुझे थोड़ी बहुत समझ ज़रूर दे सकती है, लेकिन वो मेरे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को कैसे इनकैप्सुलेट कर रही है, मेरे साथ मैं उसमें कैसे उतर रही हूँ, मेरे लिए वो कितनी ट्रू है, मैंने उसका क्या करना है, वहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल चाहिए. हम सब के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज अलग हैं, चीज़ों को समझने का, रिसीव करने का तरीका अलग है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला सेशन हो गया, ठीक है, फ्री एसोसिएशन होगी, आपने हर चीज़ अपने थेरेपिस्ट को समझा दी. आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स, डू यू वॉन्ट मी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन इन द फर्स्ट सेशन or you want to take it all out in front of me? And I keep picking my notes. My patients tell me, सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है. Some come and tell me, no, let me speak यार, don't interrupt. Some say, okay, last 10-20 minutes just give me something, क्योंकि मैं ट्रिगर हो रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा अपना कल ऑफिस बच्चे ये वो सारा कुछ देख लूँ और ये चीज़ें बार बार रीप्ले ना करें. And some be like, no, I have one agenda in mind. इस पे आज हम बात करते हैं और आप मुझे साथ साथ बताइए कि whatever there is that needs to be discussed and talked about. So अगर एक तीसरा सेशन आ गया, चौथा सेशन आ गया and you're not getting something out of it, then that is something that you need to pay attention to, or maybe consider talk to your therapist or change your therapist. अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन थॉट्स के बारे में, कि जो आप बेसिक जो भी इशू अराइज करता है या डिस्कम्फर्ट अराइज करता है या कोई सेंसेशंस अराइज करती हैं आपकी बॉडी में, आई फील लाइक दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ थॉट. कि मेरे दिमाग में एक थॉट आई कि कल मैंने ये चीज़ कर दी थी और ये चीज़ हो गई, या पॉसिबली फ्यूचर में अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट आ रही है, अजीब सी सेंसेशंस आ रही हैं बॉडी के अंदर और मैं हैप्पी नहीं हूँ विद इन माई बॉडी. तो ये मेन चीज़ तो थॉट्स ही हैं कि आपके दिमाग में क्या चीज़ प्ले कर रही है, क्या इमेजेस आ रही हैं, क्या अनसर्टेनिटी आ रही है, क्या फेयर्स आ रहे हैं. थॉट्स अल्लाह ताला ने बनाई क्यों, और बनाई तो उसको मैनेज करने की एक रूल बुक क्यों नहीं दे दी कि साथ इसको इस तरह मैनेज भी कर लेना है आपने. और कहाँ से आप जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कौन सी ऐसी स्टेज, ज़्यादातर किस एज में ऐसा होता होगा कि आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव को ज़्यादा पिकआउट करना शुरू हो जाता है और अब हमेशा दिमाग में सिनेरियोज बनाना शुरू कर देते हैं, और कब आपके थॉट्स आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं हो, हम दिन में हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं. अक्सर होता है मेरे साथ भी, इवन दो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी अवेयर थ्रू आउट माई डे, लेकिन ऐसे मोमेंट्स आते हैं याद ही नहीं होता कब वहाँ रख दिया था. कॉफ़ी, आज मैंने अपना कॉफ़ी का, उसने मुझे वो दिया, बॉटल दी, मैंने अपनी अलमारी से कुछ चीज़ निकाली, उसके अंदर रखा और जाए गाड़ी में बैठ गया, और फिर उसने बाद में याद आया कि शिट वो तो मैं उधर, तो वे नॉट इवन awake while we're awake. How do we get so lost in thoughts and how do we
become present in the moment and become aware of our thoughts so that we know कि वो सब सच नहीं है, Yeah. वो झूठ भी हो सकता है. वो किस तरह आएगा? Abbas, again, before I answer your question, what is thought? वही तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये थॉट होता है क्या? जनरेट किस तरह होती है और कॉन्शियसनेस क्या है? आई मीन Yeah. वेयर एम आई कॉन्शियस अबाउट माई थॉट्स? और ये Yeah. सब कुछ अभी भी जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? वेयर इज कॉन्शियसनेस? Thought is self-talk, simply. इसका कोई मेडिकल भी है कि थॉट्स किस तरीके से अराइज होती हैं? मेडिकल डेफिनेशंस अब्बास बहुत सारी हैं. मेरा आपका व्यूअर मेडिसिन पढ़ने के लिए हमारे पॉडकास्ट नहीं देख रहा, उसको रिलेटेबल आंसर चाहिए. थॉट इज सेल्फ टॉक. आप जो खुद से बात कर रहे हैं वो थॉट है, राइट? वन थिंग. अब जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी और से बात कर रहे हो और आपको पता ही ना आप किसी और से बात कर रहे हैं? नहीं हुआ ना, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली प्रेजेंट. You're conscious of what you're taking and you take complete responsibility of how your words are going to make the other person feel. मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, मेरी वजह से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से अगला बंदा किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरे. बट व्हेन वी टॉक टू आवर सेल्फ वी से द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग्स टू आवर सेल्व्स, द मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियोज वी प्ले इन आवर माइंड. आपका दोस्त इंटरव्यू देने जा रहा है, आप दुनिया जहान के मोटिवेशनल कोटेशंस उसको सुना देंगे. खुद का इंटरव्यू होगा तो सबसे वर्स्ट केस नहीं होगा तो घर आके मैंने कैसे सबको फेस करना है, मैं खुद को क्या कहूँगा, फिर दूसरा कौन सा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है. Always thinking in the worst for ourselves. This is why I even made this video on my gram that assertive communication is not just when you're talking to other people, it's equally important when you're talking to yourself. You know, when I talk to myself, I call myself Noori. I don't even call myself Noor. I deserve my love the most. I deserve my attention the most, my compassion the most. हमारी बीमारी हमारी खुद की कॉन्वर्जेशन से स्टार्ट होती है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर आवरसेल्फ वर्दी. टफ करने के चक्करों में बीमार कर देते हैं खुद को. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन सी, जब पहली दफ़ा आपने गाड़ी चलाई होगी, कितना आपने स्टेयरिंग भी तरीके से पकड़ा होगा. यू आर वेरी कॉन्शियस कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आप पैर कहाँ रख रहे हैं, आपकी ध्यान है एंड ऑल. आहिस्ता आहिस्ता इट गोज़ इनटू योर, हम इसको ऑटो पे कहते हैं कि वो चीज़ें सारी ऑटो पे चली जाती हैं और ख़ुद से अब आप एक हाथ में सैंडविच है, एक हाथ में फ़ोन है, एंड यूर ड्राइविंग योर कार. This happens कि you just need to bring your attention back to what you're doing and what you're saying. It's all practice. चीज़ें ना बाज़ात आदत में कन्वर्ट होती हैं तब तकलीफ़ देना शुरू करती हैं. जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी एक हैबिट बना ली है. just I tell my patients this thing as well. Take a time in your routine. ये 1 घंटा मेरा me time कह लें, whatever name you want to give it that time. Think with the pen. You know, when you write your thoughts down, you are processing it along. बहुत ज़्यादा. बिकॉज अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पास. आपका इन्वायरमेंट वो किस चीज़ को प्रोब कर रहा है, किस चीज़ को इनेबल कर रहा है. बहुत ज़्यादा अनहेल्दी इन्वायरमेंट में अगर आप हैं तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस आता है. दैट यू ओनली थिंक इन अ नेगेटिव मैनर, यू ओनली थिंक इन द वर्स्ट मैनर. अच्छा, DBT में हम बात करते हैं वाइज माइंड की. देयर इज दिस रैशनल माइंड, देयर इज एन इमोशनल माइंड. इन दोनों के दरमियान में आता है आपका वाइज माइंड. कंप्लीटली रैशनल हो जाना, सिर्फ इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को देखना, वो भी जहानत नहीं है. कंप्लीटली इमोशनल हो जाना, वो भी नहीं है. यू नीड टू स्टे इन द वाइज माइंड. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आपके सारे थॉट्स, आपको हर तरह के थॉट्स आ रहे हैं. एविडेंस बेस्ड थिंकिंग. मुझे लग रहा है कि अभी मैं उठूँगी और ये कब गिर जाएगा, ठीक है, इट्स अ फियर. Then I'm going to ask me, how many times have I stood up from a chair and a cup has fallen from my hand? Do I have any evidence about that? That is very important. Loop पे, ऑटो पे थिंकिंग किए चले जाएं, वो कोई बैरियर नहीं आता, वो कोई ब्रेक नहीं आता. इसी वजह से आप कब भूल जाते हैं, आप पेन भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि कोई काम आपको करना था. You need to stay conscious, stay in the present. अब हम बहुत लाइट लेते हैं. साइकोलॉजिस्ट का मीम्स भी बहुत बनती हैं 5 4 3 2 1 एक्सरसाइज पे कि 5 चीज़ें जो आप देख रहे हैं, 4 चीज़ें जो आप सुन पा रहे हैं. इट ब्रिंग्स यू बैक इन टू द प्रेजेंट, कट्स डाउन योर. और सबसे एक बहुत ईजी सी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत सारे दिनों से बहुत ज़्यादा आप अपने थॉट्स में रहने लग गए हैं, चेंज योर पोजिशन, स्टार्ट वॉकिंग. जैसे ही ये रियलाइज़ होना कि अरे मैं तो काफ़ी देर से बस अपने से ही कुछ देर में बैठा रह गया हूँ और बातें कर रहा हूँ, टेक अ वॉक डाउन द स्ट्रीट, इन योर लॉबी, एनीवेयर. चेंज योर पोजीशन. आपका ब्लड फ्लो आपके लिम्स की तरफ जाता है, थोड़ा ब्रेन से डिस्कनेक्ट होता है.
थोड़ी देर बाद when you're able to sit rationally, give it another shot. लेकिन थॉटलेस तो कोई हो ही नहीं सकता. नहीं, थॉटलेस होना भी नहीं है, बस सिर्फ ये देखना है कैलकुलेटेड अप्रोच. कोई भी चीज़ ख़त्म कर देना किसी साइकोलॉजिस्ट का एजेंडा नहीं होता है, ना ही वो हमने करना है. वी हैव टू ब्रिंग यू बैक टू द बैलेंस, क्लैरिटी. मैंने बैलेंस की तरफ आना है. स्क्यूड अप्रोच कभी भी ठीक नहीं होती है किसी भी सिनेरियो में. हमने आपको बैलेंस की तरफ लेकर आना होता है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपकी वैसे डेली हैबिट्स डिफाइन करती हैं कि आपकी बॉडी किस तरह की है और आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह की है. तो आपका लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है. लाइफस्टाइल में whether you work out or not, whether you eat good nutrition or not, आपकी नींद कैसी है, रेस्ट कैसा है, ये सब कुछ ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है. अब्बास, जब भी कोई there are a few things that I would want to highlight, especially deviance, distress, dysfunction and danger. ये 4 Ds होते हैं साइकोलॉजी के. deviance ये है कि आप जो चीज़ नॉर्मली कर रहे हैं, आपको ये महसूस होना शुरू होता है कि certain behaviors और कुछ चीज़ें about me, could be anything, is deviating from my normal. हर किसी का नॉर्मल डिफरेंट हो सकता है, हर कल्चर का डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है. योर नॉर्मल, अब देखिए इसमें आई डोंट हैव टाइम टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बट फॉर एग्जांपल इफ यू यूजुअली स्लीप, हैव अ वेरी गुड 8 hours स्लीप, बट कुछ टाइम से यू आर नॉट एबल टू स्लीप फॉर 8 hours, दैट इज योर डिविएशन, राइट? देन कम्स डिस्ट्रेस. Any behavior which previously was not causing you distress is now causing you distress, or which previously used to cause you distress is not causing distress. You need to stay alert about that. Then dysfunction. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डे टू डे टास्क, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, डेली टास्किंग को हैम्पर कर रही है, दैट्स डिसफंक्शन. एंड देन डेंजर. पोटेंशियली डेंजर में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिहेवियर जो आपको डेंजर साउंड करे, कि मुझे बाज़ औक़ात इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि मैं खौफज़दा हो जाता हूँ कि मैं किसी और को हार्म ना कर दूँ, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपनी वाइफ को, एक्सेट्रा. ये 4 Ds हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं. यहाँ पे से फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं लाइफस्टाइल के साथ. एवरी टाइम समथिंग गोज़ रॉन्ग, इट गोज़ साउथ, स्टार्ट विद बायोलॉजी. हम इसको बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं. हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी बाबे को दिखा देते हैं, वी यूजुअली गो टू दैट साइड. स्टार्ट विद, देयर कुड बी अ मेडिकल रीज़न फॉर दैट. हो सकता है कि मेरी किसी न्यूरो ट्रांसमीटर का इशू हो, कोई केमिकल इम्बैलेंस मेरी बॉडी में आ रहा हो सकता है मेरे अंदर किसी वाइटल न्यूट्रिएंट की कमी हो जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें फील कर रहा हूँ. डोंट डायरेक्टली गो टू अ साइकोलॉजिकल रीज़न और अ सोशल रीज़न. स्टेप बाय स्टेप चलना है, राइट? उसके बाद लुक इन टू योर थिंग्स अराउंड यू. सोशली आप कहीं पे स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं, देन गो इन टू द psychology of it. And for that you would definitely have to go to a psychologist. Now connecting it to your daily habits, बहुत basics हैं. आपकी sleep very important. अब हम जब जिम जाने का कहते हैं ना, ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स हमारे पास जो डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं या एंजाइटी के साथ आ रहे हैं, I specifically tell them to go for strength training. It not just आप शुरू में पहले मसल्स ब्रेक होते हैं, फिर बनते हैं, आपकी बॉडी रिजिलियंट होती है. और ना सिर्फ आप फिजिकली रिजिलियंट हो रहे होते हो, आप मेंटली भी रिजिलियंट हो रहे होते हो. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फॉर बोथ मेन एंड वेमेन स्पेशली, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन छोटी मोटी एक्टिव. अच्छा, हमें ये लगता है कि शायद घर का काम कर लिया तो बस इनफ है. नहीं, इट्स नॉट इनफ. यू नीड टू गो टू अ जिम. यू नीड टू थोड़ा अरसा एक ट्रेनर के साथ थोड़ा सा करके वो आपको गाइड कर देगा. अच्छा, हमारा ना ये भी मसला है, हमें लगता है हर बंदा हर फन मौला हो सकता है. मुझसे जब भी कोई डाइट रिलेटेड एडवाइस मांगता है, आई क्लियरली टेल देम आई एम नॉट ट्रेन्ड. जब भी कोई मुझसे वर्कआउट रिलेटेड एडवाइस मांगता है, मैं उनको क्लियरली बताती हूँ, दिस इज नॉट माई जॉनरा. यू नीड टू गो टू अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर दैट. एब्सोल्युटली. मैं भी यूट्यूब से 4 बातें सीख के जरूर बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको इंडेंजर नहीं कर सकती. प्रॉबेबली वो चीज़ें आपके लिए सूटेबल ना हो. Right? So that is one thing very important. Physical movement is very important. Your connection with nature in whatever way. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जाके हिमालय में बैठ जाएं या आप रोज़ जाके कश्मीर का विजिट करके आएँ. हम घर से बाहर निकल जाएं, टेरेस पे 5 मिनट बैठ जाएं. That is enough. Then how much you are investing in your relationships. वो भी एक हैबिट है. थोड़े अरसे बाद ना हर रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है. यू नीड टू ऐड एक्साइटमेंट टू दैट. वो भी आपकी ज़िंदगी का, आपकी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. फिर अगर हम डाइट की बात करें, हमें ये तो पता है कि हम खा क्या रहे हैं, हमने अपने न्यूट्रिएंट काउंट कैसे करना है, कितनी प्रोटीन्स लेनी है, कितने कार्ब्स लेने हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. डाइट सिर्फ हमारे स्टमक के लिए नहीं है ना. आप देख क्या रहे हो,
आप सुन क्या रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप किन चीज़ों के ऊपर आप जो कंटेंट आपके सामने से गुजर रहा है, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी गुजर रहा है, आपका ब्रेन तो प्रोसेस कर रहा है, वो आपको एक सर्टन फीलिंग तो दे रहा है. तो वी नीड टू बी एज मच कॉन्शियस अबाउट दैट फूड एज मच एज वी आर अबाउट वॉट इज़ इन आवर प्लेट. वॉट इज़ अराउंड अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह के साउंड्स हैं, किस तरह के लोगों में मैं रह रही हूँ, क्या मैं देख रही हूँ, मेरा विजुअल एक्सपोजर कैसा है, ऑल ऑफ दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी रिलेशनशिप्स के बारे में कि ज़्यादातर क्या आपने एक स्पेसिफिक नंबर भी कोट किया, 98% ऑफ मेन आर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप्स, इन देयर मैरिज. इन देयर मैरिजेस. ये बहुत बड़ा नंबर है. एंड व्हाई डू यू से दैट? अच्छा, वो एंड हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल? Do you really think that every problem needs a solution, Abbas? Sometimes we really need Not to really. We need to accept things how they are as well from time to time. accept, process, manage. वो बहुत ज़रूरी है. मैरिज का एक अलग से एक बहुत लंबा टॉपिक है. आई हैव अ लॉट टू शेयर इन दैट सेंस एज वेल. लेकिन हमें शादी लगता करनी है चाहिए. बहुत ज़रूरी है. तो अगर 98% मर्द खुश नहीं है तो फिर यार, ज़रूरी क्यों है? शादी करें. क्वेश्चन तो ये है. शादी करें, लेकिन शादी करने आपने के भी बोला लिए कि 98% मर्द खुश नहीं है, फिर आपके नहीं कर भी लो शादी शादी. करने के लिए प्रेपरेशन भी तो ज़रूरी है ना. प्रिपरेशन किसके साथ? प्रेपरेशन खाली ये नहीं होती है कि इतने हम पैसे तो- जोड़ लिए हैं, हाँ, बस पैसे बस पूसे. नो, दैट बत्तियां लगा दो और खाना अच्छा होना मैंने चाहिए. गाड़ी ले लिया है, मेरी जॉब हाँ. अच्छी हो गई है. नहीं. आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कितना स्ट्रांग है? हाउ मच क्लैरिटी डू यू हैव अबाउट योर सेल्फ एंड द पर्सन दैट यू आर ब्रिंगिंग इन टू योर हाउस? What sort of conflict management do you have? What is your conflict language? What is your love language? How do you perceive अपने बारे में सीखना है आपने, तो दूसरे के बारे में भी तो सीखना है. हमारे कल्चर के अंदर अगर मैं शादी करने कहीं जा रहा हूँ, अगर अरेंज सेटिंग के अंदर, तो हमारे कल्चर में तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि आप दूसरे इंसान से बात कर लो. बात करोगे तो गुनाह मिलेगा. ये ना मैं आपको तो हम बात ही नहीं कर सकते. बात ही नहीं कर सकते. एक रैंडम बंदा घर के अंदर एंटर हो गया और वो उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, इमोशनल EQ क्या है, IQ क्या है, वो सोशली कितना अवेयर है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अपनी ज़िंदगी में, वो तो तभी पता चलेगा जब बात होगी. अब्बास, सी कैलकुलेटेड डिसीजंस, वाइज डिसीजंस. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई स्केल नहीं है दुनिया का, कोई मेजरिंग टेप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपके हाथ में दे दूँ कि इसको करने से आपको रेड एंड ब्लू कलर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. राइट एंड रॉन्ग आप सारी ज़िंदगी खेलते रहेंगे. जल्दी डिसीजंस लें ताकि उन डिसीजंस का आउटकम देख के आप जल्दी अपने लिए एक डिसीजन ले लें. इन्फॉर्म डिसीजन और क्विक डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इन तो प्रेजेंट टाइम्स. एक पक्का डिसीजन है ना. एक- शादी वाला हाँ, डिसीजन है. हाँ, तो अच्छा, शादी ये- होगी. ये भी- फिर उसके बाद डिसीजन तो सिर्फ एक ही होता है अगर ना चला तो. So what? नहीं, so what? Staying in an unhappy marriage, affecting your children, generations to लेकिन come. coming out of unhappy marriages is not easy and people are not well equipped to deal with that trauma. This was my point. You और need to सोशली जो आपको आपकी सोसाइटी, खास तौर पे आपके पेरेंट्स, दोस्त, ओ यार दे तो तलाक हो गया, ओ तेरा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल. खास तौर पे औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशराइजिंग ज़्यादा. होता है ना. अच्छा, अब्बास, तो सी पहले सही डिसीजन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको फिगर आउट किस तरह किया जाए whether the other person would be the right person for you or not. इस डिस्कशन में ना बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑफशोर इस तरह से जाएंगी कि हमारे पास स्टैट्स कुछ बता रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और वो सारी चीज़ें. लेट मी आंसर योर क्वेश्चन इन अ मैनर दैट यू नो इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. You need to have a lot of clarity about yourself. Many men and many women do not actually know मुझे चाहिए क्या. मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता आया है, मैं क्या पूछूं? ये मैं कैसे बताऊंगी कि आप क्या पूछें, राइट? अब अगेन एविडेंस बेस्ड बात नहीं है. पिछले दिनों आई मेड अ वीडियो ऑन दैट एंड आई थॉट ऑफ इट कि वन थिंग जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है ना, कि शादी के बाद प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है. द वुमेन आई एम ब्रिंगिंग इन टू माई होम, द वुमेन दैट आई ऑलरेडी हैव इन माई होम, वो प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं? इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है. कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे राइट्स आपके राइट्स के साथ मिलने चाहिए. वैल्यूज़ क्या होती हैं अब्बास? लेट मी आस्क यू, व्हाट आर वैल्यूज़? हर बंदे की वैल्यूज अपनी अपनी हिसाब से होती क्या है? डिटरमिन की जाती हैं. इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी. These are the things that you would never compromise on. मैंने एक टर्म ईजाद की है, ये मेरी अपनी टर्म है, HQ, ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स, HQI. ओके. वो इंडेक्स मैं डिफाइन करती हूँ सामने वाले की वैल्यू पे. ये कोई रिसर्च नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है. यू हैव ऑल द राइट्स टू डिसएग्री. हर वीडियो में मैं ये बार बार कह रही होती हूँ. ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया और मैंने इसको मैं शेयर भी करती हूँ डिस्क्लेमर के साथ कि इसमें मैंने अभी तक रिसर्च नहीं की. ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं आप
की क्वालिटी मेजर कर रही हूँ आपकी वैल्यूज़ पे, और वैल्यूज़ में दो आगे से डिविजन्स ये भी अगेन मैंने बनाई हैं. कुछ फिक्सेटेड वैल्यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, मैं इसका ढकती हूँ. अपने लिए ये मेरी वैल्यू है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, दिस इज़ नॉट निगोशिएबल फॉर मी टू अनकवर माई हेयर to the non-Mariams. Now, this is flexible in a sense, flexible and inflexible values. Ke this is for me. If other people are not doing it, not my business, right? I'm okay with that. But then there are certain values जो मैं अपने लिए भी hold करती हूँ, and I based on those values I choose people around me. I would never steal anything. मैं कभी चोरी नहीं करूँगी. मैं चोर से दोस्ती भी नहीं करूँगी. ये मेरी दो वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ आपकी ज़िंदगी के हर डायमेंशन में हैं. पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह से मेरी कुछ वैल्यूज़ होंगी. इन वैल्यूज़ पे मेरा ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड होता है. ठीक है. अब मेरे लिए वो वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, आपके लिए वो मुख्तलिफ हो सकती हैं. जब मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी ना कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी बेसिस पे मैं सामने वाले से सवाल कर सकूंगी. अगेन सामने वाला तो झूठ भी बोल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है. वहाँ पे ना एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, और अनसर्टेनिटी का किसी साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है. वहाँ पे तवक्कुल रोल प्ले करता है. वट एवर रिलीजन यू फॉलो, वट एवर सुप्रीम हायर पावर यू फॉलो, यू बिलीव इन, वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है. सो आपने अपने करने के काम रखने हैं, और बाकी चीज़ें फिर आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देनी है. सो बट आंखें बंद करके छलांग लगा देना वो भी गलत है. वर्क ऑन योर सेल्फ, हैव क्लैरिटी, सी व्हाट यू नीड टू सी इन द अदर पर्सन. अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं उनको नहीं डिस्कस करने चाहूँगी सिचुएशनशिप के नाम पे, लिव इन रिलेशनशिप्स के नाम पे. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. अगेन एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ पर्सन भी बात करते हुए आई कांट. बट एक सिंपल कॉन्वर्जेशन में आप एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करके कुछ क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं. व्हाट इज समथिंग दैट दैट इज नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, एंड देन यू बिस्मिल्लाह इनटू इट. और फिर आगे तो अनसर्टेनिटी है, वो there's no way, there's no scale, I'm sorry, there's no scale that I can give you that तो can measure अगर that. बीइंग अ मैन, जिसने आपने बोला कि आप अनहैप्पी हैं अपनी मैरिज के अंदर, तो कौन से स्टेप्स आप ऐसे उठा सकते हैं जिससे आप समहाउ अपनी मैरिज को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, मैं अपनी छोटी सी प्रैक्टिस से जितना अभी तक अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, काम करने की, बहुत बेसिक सी चीज़ें जिन पे कॉन्फ्लिक्ट आता है. अगेन अब ये फिर से मेरी टर्म्स हैं. हर इंसान की एक इमोशनल फ्रिक्वेंसी होती है और एक इंटेलेक्चुअल फ्रिक्वेंसी होती है. उसको मैच करना बहुत ज़रूरी होता है. You will have a different emotional frequency, I will have a different emotional frequency, right? You approaching my problems with a very intellectual frame of mind would be okay, but at times I would only need you to, just cuddle me, love me, listen to me, validate me. I know the solution, man. I have a brain. I can look into the matter. हमें ये लगता है कि एक बस चीज़ वो बन गई है कि औरतें बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता. ऐसा नहीं है. उस मोमेंट पे टेम्परेरी सपोर्ट उसको चाहिए, उसको सुन लें. थोड़ी देर बाद जब उसकी इमोशनल फॉग थोड़ी बैठेगी, वो थोड़ा सेटल डाउन होगी, वो भी एक उम्र गुजार के आई है, उसने भी एक सर्टेन एजुकेशन हासिल की है, एक एक्सपोजर उसने हासिल किया है, वो फिर चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेगी, नेविगेट कर लेगी. लेकिन उस टाइम पर इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वन थिंग विच इज़ कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट. दैन योर कम्युनिकेशन, बी वेरी ओपन टू कम्युनिकेशन. बात करना नहीं छोड़नी है. ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, ये रिलेशनशिप को बहुत डैमेज करता है. बात तो करें, स्पेस ले लें, टाइम ले लें, बट कम बैक टू दैट इशू लेटर ऑन ना. टॉक इन अ मैनर वेयर बोथ ऑफ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एंड वर्क ऑन दैट इशू. एंड देन अगर आप दोनों की हर एक एफर्ट आपको नज़र आ रहा है कि नहीं ये चीज़ रिजल्ट आ रही है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प इज़ ऑलवेज देयर. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इन पाकिस्तान पीपल आर अप्रोचिंग पीपल फॉर कपल्स थेरेपी, प्रोफेशनल्स. और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब स्टैट्स बता रहे हैं हमारे पास कि वो काफ़ी अच्छा उसका एक प्रोडक्ट आ रहा है. शादियाँ बहुत, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो रही है. लेकिन उसके साथ साथ अब्बास अगर चीज़ें हर कपल थेरेपी की तरफ अगर आप जा रहे हो तो नॉर्मली आपके दिमाग में आता है कि इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, तो तब मैं जा रहा हूँ कपल थेरेपी की तरफ. इज दैट ट्रू? नाउ और वापस आ जाते हैं लोग? आई मीन कितना % है कि लोग वापस आ जाते हैं उनका रिलेशनशिप? यूजुअली होता है जब डिवोर्स के या खुला के केसेस कोर्ट में आते हैं ना, तो एक उनको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप थोड़ा सा, तो पीपल यूजुअली अप्रोच. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में ये थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है कि एक साइकोलॉजिस्ट जब हर चीज़ कर ली तो चलो अब ये भी कर लेते हैं. एंड इट डज़ वर्क आउट many times. It does. Sometimes हम इतने ज़्यादा ओवरवेलम हुए हुए होते हैं कि हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे होते हैं. वो जो एक बड़ी फेसबुक पे एक बड़ी मशहूर पोस्ट थी, वो 6 और 9, आप वहाँ से देख रहे हैं तो आपको 6 लग रहा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो वो वाली एक चीज़ है. पर्सपेक्टिव का डिफरेंस आ जाता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वैल्यूज़ नहीं मैच कर रही होती हैं. और टाइम के साथ साथ मुझे लगता है कि हर बंदा
अपने एंगल में निकलना शुरू होता है. You become a different person with time as well. Yeah. And that also causes one problems thing, maybe. Abbas, is very important कि how much you allow third party interference into your relationship. That is very important. वैसे Very आपने बड़ा important. ज़बरदस्त. You know, I was telling in that video that priority should be us, couple, us against the world, then our children. वो फैमिली जो हम दोनों की वजह से वजूद में आ लेकिन रही और है. बाय द वे लड़कियों में Yeah. ये ज़्यादा होता है कि उनकी एक दोस्त होती है लाजमी जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करते हैं. Yeah. अब वो दोस्त के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपसे ही आ रही है और आप तभी वेंट करेंगे या जाके बात करेंगे व्हेन यू आर नॉट वेल और व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही होती है वो नेगेटिव ही होती है, गलत ही होती है. तो वो उसको गलत तरीके से परसीव करके आप वो गलत एडवाइस दे देती हैं. तो वो गलत एडवाइस लेके आप रिलेशनशिप के अंदर वॉक इन करते हैं और फिर मुझे लगता है कि अपना रिलेशनशिप भी ख़राब करते हैं. तो खुद से आपस में सॉल्व कर लेना ज़रूरी है. ना शेयर करें दोस्तों के साथ. दोस्तों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको किस तरीके से फिल्टर करें वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. देखिए अगेन अब्बास इवन दो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है बहुत तीसरे बड़ा बंदे होता का. है, हाँ. बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. हमेशा सी रैपो खाली एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट के रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हर रिश्ते में इंपॉर्टेंट होती है. क्यों कोई बाहर जा रहा है? मैनी वुमेन आज बस तक मुझे एंजाइटी हो रही है तो मैं नहीं, कोई ना नहीं, कोई नहीं, चाहिए नहीं. मुझे शेयर करने के लिए. क्योंकि वो राइट सेट ऑफ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ना, राइट सेट ऑफ सपोर्ट नहीं मिल पा लेकिन रहा. कुछ लोगों जिस आपने बात की कुछ लोगों को रैंट करने की भी आदत है ना कि उन्होंने बोलना ही बोलना है. बोलना है, हाँ. सी अगेन आप दोनों की आपस में कितनी ओपननेस है, आप कितना खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाउसल बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप बहुत का. स्पेशली दोस्त से बात करने में कोई हमाकत नहीं है, क्या बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. किस तरह के मैटर्स आप एक्सपोज कर रहे हैं. बेडरूम मैटर्स में भी वेरिएंस आ रही है ना, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं. आपका अपने इन लॉज के साथ कोई इशू चल रहा है, चलें किसी हद तक कंसिडर कर लेते हैं. बट वेरी प्राइवेट मैटर्स इफ़ यू आर ओपनिंग टू योर फ्रेंड्स दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ओके. हम जब गुस्से में होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही नहीं होती आ रही ना होती है. और हमें आंसर्स चाहिए होते हैं और वो वाले आंसर्स चाहिए होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं. सुनना वो हमारा चाहते वो दोस्त देता है. दैट इज़ अनफॉर्चुनेट. अगेन बहुत सारी चीज़ों के जवाब शायद मैं ना दे सकूं, मगर ये है कि जो ढूंढने आता है उनके लिए फिर बहरहाल निकल भी आते हैं. लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दी एंड जो चीज़ अफेक्ट हो रही है वो आपका अपना ही रिलेशनशिप है. कोई और बंदा क्या एडवाइस दे रहा है उसको तो फ़र्क ही नहीं नहीं पड़ता. पड़ता. और वो राइट माइंडसेट के साथ शायद आपको एडवाइस भी ना दे. नहीं दे, वो नहीं गलत. दे. बहुत कम लोग हैं जो बैठ के ये बात सोचेंगे कि मुझे पता है मेरा दोस्त इस टाइम पे अनकंफर्टेबल है, वो ज़्यादा बोल रहा है, इमोशनल है, तो मुझे थोड़ी सी राइट एडवाइस दे देनी चाहिए. This is why a professional is important because they always approach you with unbiasedness. They never give you a Exactly. biased answer to your Exactly. problem. See, जब भी मेरे पास कोई couples therapy के लिए approach करता है ना, उनको होता है बस पहला सेशन है हम दोनों को सेम टेबल पे बैठा के इसको ना हस्बैंड का मैसेज आएगा, इसको ये बातें आपने बतानी है और बेगम अपने मैडम उन्होंने ना आपको मैसेज किया, आपने उनको ये एंड आई टेल देम नो, आई हैव एन इंडिविजुअल सेशन फर्स्ट विद द दोनों के वाइफ अपना-अपना. एंड देन द हस्बैंड. और उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ आर दे रेडी टू बी brought onto the table together or I need time, and then I explicitly tell them because bringing both of them unprepared वो तो फिर फिर डिजास्टर है. और सबसे पहली चीज आती है साइकोलॉजिस्ट के बारे में इतनी बड़ी पोस्ट, यू नो शी इज नॉट एथिकल, शी इज नॉट दिस, शी इज नॉट दैट. या सो वो उसमें फिर उनको अवेयर करना कि लुक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ individually first and then I'll bring you both on the table and it works tremendously well. अच्छा. Yeah, it does. सक्सेसेस हुए हैं. अच्छा, brilliant. ये तो अच्छी बात है. तो देखिए बस किसी सेशन के सक्सेसफुल होने में साइकोलॉजिस्ट का जितना रोल होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा रोल होता है उस इंसान का जो आपको अप्रोच कर रहा है. हाउ फ्लेक्सिबल यू आर, हाउ मच स्पेस डू यू हैव टू टेक अनदर पर्सपेक्टिव. अपनी बात मनमानी है या सामने वाले की कंसिडर भी करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सुननी है विद एन ओपन माइंड. सुननी है और उसको थोड़ा सा कंसिडर करना है, उस पर काम करना है. वो वाली सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया एडिक्शन के बारे में. एडिक्शंस अब जाके बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गई हैं, खासतौर पे मर्दों में. औरतों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. सिगरेट, अल्कोहल, आई डोंट नो, वीड और बहुत सारे नशे जो हम करते हैं जस्ट टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट और फॉरगेट अबाउट द पेन दैट वी हैव इन आवर लाइफ, inevitably causing more depression, more sadness. बट टेम्प्रेरी सोल्यूशन हमें मिल जाता है और हम बहुत सारे लोग हैं जो उसकी तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यूसली जा रहे हैं. तो एडिक्शन कहाँ से शुरू होती है, किस वजह से शुरू होती है, एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? Abbas, I'm not trained in addiction. मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी because this is not my genre. Yeah? ठीक है. But
I'll give you a slide because everybody is somehow at some point involved in addiction. I don't treat addiction, but I treat other aspects of it. Reason behind addictions. Could be anything जैसा आपने बोला, could be even phone की addiction. हाँ, emotion, anything. See, हम हमेशा coping है ना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए हम एक सही तरीका इख्तियार करते हैं और एक गलत तरीका इख्तियार करते हैं. दोनों आपके हाथों पे होगा. अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम एग्जिस्टेंशलिस्ट थियरी है, एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, दे टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कि यूंग ने और फ्रॉयड ने ये बात की थी कि आपके पास्ट में जो सारी चीज़ें हुई हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स पड़े हुए हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं. एग्जिस्टेंशलिस्ट ने आके बात की थी कि उनको रहने दो. अभी हाउ मच यू आर इन्वेस्टेड एंड हाउ मच यू आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वेलबींग. आप Right now, in the moment. राइट नाउ इन द मोमेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले रहे हो. दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely. प्रॉब्लम आ गई है, एम आई गोइंग टू गो इनटू, हर इंसान को पता होता है कि मैं जो स्टेप लेने लगा हूँ इसके आउटकम्स क्या होंगे. There सही is बात है. pain. See, when I was doing my internship in one of the addiction centers in Islamabad, na, essentially everybody has a story to tell which involved around grief. Grief का कोई हल नहीं है अब्बास. You lost your, God forbids, you lost your parent, you lost your pet, you lost your best friend. How can I rationally satisfy you? What reason can I give you? And you know all the reasons, man. हर किसी ने इस दुनिया से जाना है. But that grief, you need somebody to sit through you. You need to let that emotion pass through you. वो सब्र आहिस्ता आहिस्ता आता है. Multiple cases of men that were on very dangerous sort of addictions was of the women in their life might cheated on them, or they had a loss in the business, or such stories. Again, iska koi solution nahi hai. Betrayal comes with a lot of grief, a lot of anger. You need to process that. Addiction problem nahi hai, wo jo andar ka pain hai na, that is the problem. So I help people sit with that emotion, with that pain. You need to first process that emotion and then you come to the intellectual part of it. Intellectually चीज़ों को accept करने के लिए space बनाना बहुत ज़रूरी है. उस emotion को clear करना बहुत ज़रूरी है. सबको पता है plus and minus का. मैं addiction कर रहा हूँ, ultimately उसने मुझे harm करना है. हर बंदा, and by the way, people that were in that rehab were extremely educated. They were PhDs. There were people. There Even were the doctors. smartest of the smartest people get a into person it. with 1,000 hours of flight, one of the pilots, and पॉइंट कब आता है कि एकदम से ही आप गलत पाथ के ऊपर चले जाते हो और आपको खुद समझ नहीं आती. आप कहते हो चलो अभी नहीं, एक दफ़ा और, एक दफ़ा और, एक दफ़ा और, लेकिन एकदम से यू आर जस्ट वे टू इनटू इट. और वहाँ से वापस आने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए आपको ना, वो बहुत ज़्यादा है. I'll connect with your question. आपने शुरू में मुझसे कहा कि when do you know you need therapy? आप वक्त आने से पहले खुद को प्रिपेयर करते हो. मुझे नहीं पता आज से 10 दिन बाद क्या होने वाला है, आपको नहीं पता. Nobody is prepared for the worst. Therapy prepares you for the worst. हर चीज़ होगी in a lifetime. आप हर तरह के इमोशन से गुजरेंगे, आप हर चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे. You need to prepare yourself for that. Absolutely, absolutely. With that, this will come to an end. This podcast. Thank you so much. It was lovely talking to you. You're welcome. और हमें बड़ा मज़ा आया. Thank you so much, guys. I hope you guys had fun as well. Thank you.